संवैधानिक है सीएए। सीजेआई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव का 4 साल पुराना वीडियो वायरल। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंबाल। कहते हैं ना, लाइक फादर लाइक सन। सीजेआई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ का 2020 में मुंबई कलेक्टिव में दिया गया भाषण सीएए के खिलाफ उन्होंने कहा था कि सीएए असंवैधानिक है, वो वायरल हो रहा है। मोदी सरकार ने जहां फिर सीएए पर फिर बात की है, वहीं इसी बीच अभिनव चंद्रचूड़ का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुने जरूर कि उन्होंने क्या क्या दलीलें दी हैं। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। I thought let me begin by really addressing the question that I guess is foremost on everyone's mind, which is that is the CAA, the Citizenship Amendment Act, unconstitutional? Is it anti-Muslim and is it pro-Hindu? Let me begin by telling you about the unsecular origins of the Indian citizenship provisions of the Indian Constitution. You see, when the country was partitioned in 1947, two waves of migration took place from West Pakistan to India. In the first wave, which occurred after March 1947, 1st March 1947 is when the disturbances began. There was a wave of migrations from West Pakistan to India. That was a migration of Hindus and Sikhs. They came in large numbers, obviously. But there was a second wave of migration which took place from West Pakistan to India, and that occurred in 1948. Where interestingly, large numbers of Indian Muslims who had left India to go to Pakistan realized that Pakistan was not what they had thought it might be and therefore returned to India. Now you see, the return of the Muslim in India created problems for the Indian administration. By the way, the law considered these two categories to be different. So the law referred to Hindus and Sikhs as displaced persons, but the law referred to Muslims who left as evacuees. So these two are different categories in the law. And you see, Muslims who left India to go to Pakistan, their property was referred to as evacuee property. And their property was being used to rehabilitate Hindus and Sikhs who had come from West Pakistan to India. So the question arose, if Muslims want to come back to India, what will happen to their evacuee property? So correspondence ensued among leaders whose secular credentials are absolutely unquestionable. Leaders like Nehru and Sardar Vallabhbhai Patel. And Sardar Patel wrote to Nehru and said that, look, the return of the Indian Muslim to India is creating trouble. We are in a charged communal environment. There's been an influx of a large number of refugees in India. And if we give the perception that we are going to now remove Hindus and Sikhs from the evacuee property and give it back to Muslims, this is really going to be something that's going to feed the communal poison of organizations like the RSS. This is really to paraphrase what Sardar Vallabhbhai Patel said. तो देखा आपने, इस वीडियो में अभिनव ने तर्क दिया कि सीएए असंवैधानिक है क्योंकि इसमें यहूदियों को भी नागरिकता देने की बात को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि जब देश का विभाजन हुआ तो पश्चिमी पाकिस्तान से भारत की ओर प्रवास की दो लहरें आई। एक 1947 में जिसमें हिंदू और सिख शामिल थे, दूसरी 1948 में जिसमें मुस्लिम शामिल थे। भारत वापसी की इस दूसरी लहर ने भारतीय प्रशासन के लिए समस्याएं पैदा कर दी थी। अभिनव चंद्रचूड़ ने समझाते हुए कहा कि भारत छोड़ने वाले मुसलमानों की संपत्ति हिंदुओं और सिखों को दे दी गई थी, इसलिए भारत छोड़कर दोबारा भारत में वापसी चाहने वाले व्यक्तियों के लिए एक परमिट सिस्टम लाया गया। अभिनव चंद्रचूड़ ने बताया कि ये परमिट सिस्टम पूर्वी पाकिस्तान से आने वालों के लिए नहीं था। सीएए को असंवैधानिक बताया। वहीं अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सीएए असंवैधानिक है। अनुच्छेद 14 हर नागरिक को ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति को समानता का अधिकार देता है। भारत में कानून समान संरक्षण की बात करता है। अभिनव ने कहा था कि सीएए भारतीय संविधान के समानता के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। उन्होंने एक तर्क ये दिया कि इसमें कई धार्मिक समूहों को शामिल नहीं किया गया है, इसमें यहूदियों को शामिल नहीं किया गया है। अभिनव ने बताया कि सीएए में यहूदियों को शामिल नहीं किए जाने के उनके तर्क पर किसी ने कहा था कि यहूदियों के पास इजराइल है। आगे अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर यहूदियों के पास इजराइल है तो ईसाइयों और बौद्धों के पास भी अपने देश है। फिर भी सीएए में ईसाई और बौद्धों को शामिल किया गया है, लेकिन यहूदियों को छोड़ दिया गया है। इसमें नास्तिकों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि मुसलमानों के उन वर्गों को भी सीएए में शामिल नहीं किया गया है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में अल्पसंख्यक माने जा सकते हैं।
आपको बता दें, नागरिक संशोधन कानून यानी सीएए देश भर में लागू हो गया है। इसके नियम गृह मंत्रालय ने 11 मार्च को जारी कर दिए। सीएए से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। सीएए के नियमों के तहत पासपोर्ट या वीजा न होने पर भी आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए गृह मंत्रालय ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। लेकिन सीएए कितना सही है? जिस तरीके से अभिनव चंद्रचूड़ ने अपने तर्क दिए और अपनी सारी बातों को रखा, उससे साफ पता चलता है कि सीएए अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। इस तरीके से सीएए को नहीं लाना चाहिए था। सीएए को भी उन्होंने बताया है कि इससे काफी जो लोग हैं उन्हें नुकसान होने वाला है। किस तरीके से इसमें कई लोगों को जो है शामिल नहीं किया गया है। आखिर क्यों शामिल नहीं किया गया है? क्योंकि अपने लोकतंत्र की बात की जाए तो राइट टू इक्वालिटी, आप जानते हैं, सबको समानता का अधिकार है। लेकिन सीएए से कहीं ना कहीं ये अधिकार खत्म होता नजर आ रहा है। सीएए कितना सही है? क्या इसे लागू होना चाहिए था? आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।